Welcome students. In our today's virtual class, we will continue the exercise question of History chapter 2. And next question is question number 4. Make two lists, one with the main events and effects of the February Revolution and the other with the main effects and events of the October Revolution. Write a paragraph on who was involved in each, who were the leader, and what the impact of each was on Soviet history. Now in this question, first of all, we will discuss about the February Revolution, the events and effects of the February Revolution. First of all, the events. The first event about the February Revolution is food shortage were deeply felt in workers' quarter. कि there was the shortage of food which was felt by the workers. That's why the February Revolution occurred. Second, a lockout took place at a factory. The factory workers went on strike. They demanded to increase the wage rate. ठीक है, उन्होंने वेज रेट को इंक्रीज़ करने के लिए एंड टू इम्प्रूव द वर्किंग कंडीशन दे वेंट ऑन स्ट्राइक एंड दिस इज आल्सो द इवेंट ऑफ February Revolution. Next, the government called out the cavalry and police to keep an eye on them. The government of Tsar Nicholas called out the army to suppress the revolution, and this is also the event of February Revolution. This also results in the February Revolution कि when the police, when the army take harsh measure to suppress the workers' demand. Next, the government suspended the Duma. Tsar Nicholas, the government of Tsar Nicholas suspend the Duma, the elected government, elected representatives. Next, number 5, a delegation went to meet the Tsar and the military commanders advised him to abdicate. And next, a provincial government was formed. That was the provincial government of the people formed after the February Revolution. These were the events of February Revolution. Now the next effects. First, restrictions on public meetings and associations were removed. And the restrictions on the public meetings, associations were removed. Second, Soviets were set up everywhere, the governments of Soviets were set up. Next, soldiers' committees were formed in the army. In the army, the soldiers set up their committees. Then, the provincial government saw its power declining and Bolsheviks' influence grow. And after the February Revolution, the provincial government of the Soviet Union, they checked their power had been declining, and the group of Bolsheviks, the power of the Bolsheviks increased. Next, land committees were formed and peasants seized land. The peasants seized the land of the nobles, and for this the land committees were formed. This is the effects of February Revolution. Now the next is about October Revolution. First of all, we will discuss about the events of October Revolution. First, Lenin persuaded the Petrograd Soviet and Bolshevik party to agree to a socialist seizure of power. द लेनिन जो है उन्होंने पेट्रोग्रेड सोवियत को परस्यू किया कि जो बोल्शेविक्स हैं
दे सीज द पावर, कि दे गेन द पावर. सेकेंड, द अपराइजिंग बिगेन ऑन 24th October, and for this the uprising in Russia started on 24 October, and by night the city had been taken over and the ministers had surrendered. और 24 अक्टूबर के नाइट तक जो पूरी सिटी थी, उस पूरी सिटी के ऊपर जो बोल्शेविक्स थे उन्होंने कंट्रोल कर लिया, और जो मिनिस्टर्स थे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, दैट हैड बीन सरेंडर्ड. एंड द इफेक्ट्स ऑफ अक्टूबर रेवोल्यूशन वर, नंबर 1, मोस्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स वर नेशनलाइज्ड, कि मोस्टली जो बैंक्स थे, इंडस्ट्रीज थे, उनको नेशनलाइज्ड किया गया, कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में किया गया. सेकेंड, लैंड वॉज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी एंड पीजेंट्स वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी, कि लैंड को सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया गया और पीजेंट्स को राइट दिया गया कि वो नोबल्स की लैंड को सीज कर सकते हैं, टेक कर सकते हैं. नेक्स्ट, यूज़ ऑफ ऑल टाइटल्स वर बैंड, कि जो भी अरिस्टोक्रेटिक टाइटल्स थे उनको बैन कर दिया. नेक्स्ट, न्यू यूनिफॉर्म्स वर डिज़ाइंड फॉर द आर्मी एंड ऑफिशियल्स. नेक्स्ट, रशिया बिकेम अ वन पार्टी स्टेट, कि अब रशिया में एक ही पार्टी थी, बोल्शेविक पार्टीज, जो गवर्न कर रही थी. ट्रेड यूनियंस वर केप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल, कि ट्रेड यूनियंस को भी पार्टी के बोल्शेविक्स के कंट्रोल में किया गया, वो फ्री नहीं थे. नेक्स्ट, अ प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए, इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए जो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग है उसको इंट्रोड्यूस किया गया. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वर द मेन चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय द बोल्शेविक्स इमीडिएटली आफ्टर द अक्टूबर रेवोल्यूशन. ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि कौन कौन सी चेंजेस की गई बाय बोल्शेविक्स अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद. तो सेम ऑलमोस्ट वही आंसर आएगा इसमें, जो हमने इफेक्ट्स अभी ऊपर डिस्कस किए हैं अक्टूबर रेवोल्यूशन के, वो सेम आंसर आएगा. फर्स्ट, इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स वर नेशनलाइज्ड. सेकेंड, लैंड वॉज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी. थर्ड, peasants were allowed to seize the land of the nobility. Fourth, use of all titles was banned. Fifth, the Bolshevik party was renamed as the Russian Communist Party, कि बोल्शेविक पार्टी को रीनेम किया गया, उसका नेम चेंज हो गया. नाउ इट रीनेम्ड एज रशियन कम्युनिस्ट पार्टी. तो दीज वर द चेंजेस that brought about by the Bolsheviks after October Revolution. Now the next question number 6. Write a few lines to show what you know about. यहाँ पे आपको कुछ टर्म्स दी हुई हैं, आपको उनके बारे में बताना है. तो फर्स्ट, कुलैक्स. कुलैक्स का मीनिंग क्या होता है कि दे वर द वेल टू डू पीजेंट्स हु वर supposed to be hold stocks in the hope of higher prices. यहाँ पे बेटा पीजेंट्स के स्पेलिंग ठीक करो, यहाँ प्रेजेंट लिखा हुआ है पीजेंट्स, PEASANT. ठीक है, कि जो वेल टू डू प्रॉस्परस पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, उनको बोलते थे कुलैक्स. ठीक है, और इनको बिलीव किया जाता था स्टेलिन के थ्रू, कि स्टेलिन का ये थिंकिंग थी, बिलीव था कि इन्होंने हाई प्राइस के होप में जो फूड ग्रेन्स हैं उनको स्टॉक किया हुआ है. सेकेंड, डूमा. अब डूमा का मीनिंग क्या होता है? द डूमा वॉज अ कंसल्टेटिव पार्लियामेंट that was created on the permission of the Tsar during the 1905 revolution. कि जब 1905 का रेवोल्यूशन हुआ रशिया में, तो उसके बाद जो इलेक्टेड पार्लियामेंट है, कंसल्टेटिव पार्लियामेंट है, उसको क्रिएट किया गया था आफ्टर द परमिशन ऑफ ज़ार. तो दिस पार्लियामेंट वाज नोन एज डूमा. तो इसको क्या बोलते हैं? डूमा.
Now the next third statement, women workers between 1900 and 1930. तो women workers के बारे में बताना है इस time period के between. Now the answer is women made up 31% of the factory labor force but were paid between half and 3/4 of a man wages. They actively led the strike in many factories. They even worked in the collective farms. कि अगर हम 1900 एंड 1930 के टाइम पीरियड के बीच में बात करें तो मोस्टली जो वीमेन थी जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर फैक्ट्रीज़ के अंदर वर्क करती थी वो टोटल वर्कर्स का 31% थी, लेकिन उनको मेन के कंपैरेटिवली बहुत लो वेजेस पे की जाती थी. ठीक है, बिटवीन हाफ एंड 3/4 कि जितना मेन को पे करते हैं उसका हाफ और 3/4 वीमेन जो हैं उनको पे किया जाता था. इन्होंने जब फैक्ट्रीज़ वर्कर ने स्ट्राइक की तो उनमें भी इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, और जब स्टैलिन ने कलेक्टिव फार्म्स का कंसेप्ट दिया तो उसमें भी इन्होंने वर्क किया. नाउ द नेक्स्ट, द लिबरल्स, दे वर अ ग्रुप which looked to change our society. They wanted a nation which tolerated all religions and opposed the uncontrolled power of dynastic ruler. They argued for elected parliamentary government. ठीक है, अब लिबरल्स के बारे में बताया कि लिबरल्स कौन थे, कि वो ग्रुप ऑफ पीपल जो सोसाइटी में चेंज चाहते थे. ये चाहते थे कि ऐसी नेशन, ऐसा कंट्री सेटअप किया जाए जहाँ पर सभी रिलीजन को इक्वलिटी प्रोवाइड किया जाए, और जो मोनार्क हैं, डायनेस्टिक रूलर्स हैं, उनकी पावर्स रिस्ट्रिक्टेड हों. ठीक है, ये फेवर करते थे इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को. ओके, नाउ द नेक्स्ट, स्टैलिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम. ठीक है, अब ये प्रोग्राम क्या था यहाँ पे इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है. Stalin hoped to solve the problem of food shortage through combining small farms with large and modern farms, and this was collectivization program that began in 1929. Peasants were forced to work in the state-controlled collective farms called kulkos. ठीक है, तो ये प्रोग्राम क्या था, इस कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम को स्टैलिन ने स्टार्ट किया था फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और इसके थ्रू जो स्मॉल फॉर्म्स थे उन सबको कंबाइन करके, ग्रुप करके बिगर फॉर्म्स में, लार्ज फॉर्म्स में कन्वर्ट किया गया, और वहाँ पर जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं उनको यूज़ किया गया प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए. 1929 में ये जो प्रोग्राम है कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम, तो दिस वाज बिगन, एंड पीजेंट्स वर फोर्स्ड. ठीक है, पीजेंट्स जो थे, फार्मर्स को फोर्स किया गया कि वो कलेक्टिव फॉर्म्स के अंदर वर्क करेंगे. ओके, नाउ द एक्सरसाइज वर्क ऑफ चैप्टर 2 आल्सो हैज़ बीन completed, and you have to complete this on your notebook and submit for your respective teachers for checking. Okay beta, thank you.